हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जनरल ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया था और इसमें आज हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में? जो हमारे इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया का फिज़िकल डिवीज़न। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये है पैलियोमैग्नेटिज्म इज़ द ब्रांच दैट स्टडीज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, सेडिमेंट्स और अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. This branch of science is helpful in the study of ancient geological phenomena. According to continental drift theory, the Indian mainland is a part of Gondwana land. ठीक है, जो continental drift theory है वो कहती है कि जो इंडियन mainland है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है. गोंडवाना लैंड includes present day India, Australia, Africa, South America and regions of Antarctica. In mid-Mesozoic era, Jurassic period, 200 million years ago, Gondwana land split into a number of pieces through convection currents. Indian plate started drifting towards north after splitting from Gondwana land. Consequently, Indian plate moving towards north collided with a bigger plate called Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks of the Tethys Sea between the two plates, that is Indian and Eurasian, folded and developed into the Himalayas and mountain ranges of West Asia. The whole mountain range of the Himalaya represents a youth topography. It has high peaks, deep valleys, gorges and fast flowing rivers. In Tarai region of Himalayas, artesian wells are also found. Artesian wells कहाँ पाए जाते हैं, जिनको कि पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं. In Tarai region of Himalayas, artesian wells are also found due to the upliftment of Tethys Sea in the Himalayas and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. With the passage of time, this basin was filled gradually with sedimentary deposits of rivers flowing from northern mountains and peninsular plateau. In this way, a vast land area made up of alluvial deposits was developed as the northern plain of India. Geologically, peninsular plateau is the ancient part of Earth's surface. Peninsular plateau is the most stable region of India. Peninsular plateau comprises of hills and broad valleys which are made up of igneous and metamorphic rocks. मेघालय plateau is an extension of peninsular plateau. ठीक है, जो मेघालय plateau है वो किसका extension है? peninsular plateau का extension है. It was separated from Indian peninsula through मालदा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग. जो मेघालय प्लेटू है, मेघालय प्लेटू क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है. और जो मेघालय प्लेटू है वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला थ्रू मालदा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग. Western coast of India was formed due to faulting and subsidence of the western flank of the plateau. Indian mainland shows a large variation in the physical structure. Therefore, India is divided into four natural regions. These are number 1 northern mountains, number 2 northern plains, number 3 peninsular plateau and number 4 coastal plains and islands. Apart from these divisions on the basis of rock structure, relief and tectonic activities, India is divided into 4 main and 6 sub फिजिकल जियोमेट्रिक रीजन्स, जियोमॉर्फिक रीजन्स. ठीक है, तो क्या है? अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजन्स, ये जो 4 डिविजन्स हमने पढ़े, ठीक है, जो कि क्या है? नेचुरल रीजन्स हैं. देयरफॉर इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन्स. इंडिया के 4 नेचुरल रीजन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 है नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 है पेनिनसुलर प्लेटू, नंबर 4 है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. ठीक है, Apart from these divisions, on the basis of rock structure,
relief and tectonic activities, India is divided into four main and six sub-physical geomorphic regions. Number 1, the northern and northeastern. Number 2, the northern plain. Number 3, the Indian desert. Number 4, the peninsular plateau. Number 5, the coastal plain. And number 6, the islands. ठीक है, तो ये इंडिया का डिवीज़न था, जो कि अगर हम नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया कहें तो ये क्या है, नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। इनको नेचुरल रीजन्स के अकॉर्डिंग इंडिया को 4 टाइप्स में बांटा गया था, 4 पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें कि फर्स्ट था नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन एंड 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स। 6 क्या है, 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स हैं। पहला रीजन है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, सेकेंड है द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है द इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है द पेनिनसुलर प्लेटू, नंबर 5 है द कोस्टल प्लेन, नंबर 6 है द आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये मैप दिखाया गया है इंडिया का, इसमें फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। सबसे आप ऊपर देख सकते हैं, अगर जो हम मेनली जो 4 नेचुरल रीजन्स की हम बात करते हैं इंडिया की, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर है नॉर्दर्न माउंटेन्स है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं जिसमें कि इंडो गंगा प्लेन आता है, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन आता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पेनिनसुलर प्लेटू आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया का जो कोस्टल्स का जो एरिया है, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, तो ये क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, इंडिया कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 मेन और 6 सब फिजियो-जियोमॉर्फिक रीजन्स में डिवाइडेड है। ये जो 6 सब फिजियो-जियोमॉर्फिक रीजन्स हैं, ये कौन कौन से हैं, आप देख रहे हैं इनको ऊपर। सबसे ऊपर है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, सेकेंड है द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है द इंडियन डेजर्ट, 4 है द पेनिनसुलर प्लेटू, 5 है द कोस्टल प्लेन, 6 है द आइलैंड्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है the paleomagnetic results obtained from India indicate that in the past the Indian landmass has moved। ठीक है, ये पूछा गया है कि द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। कहाँ को मूव्ड हुआ है, इंडियन लैंड मास जो है वो नॉर्थवार्ड मूव हुआ है। ठीक है, द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवार्ड, यानी उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव हुआ है, नॉर्थ की तरफ हुआ है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया, इवन द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू रीजन इन द नॉर्थ साइड इज एविडेंट। Paleomagnetism is the study of the record of the Earth's magnetic field in rocks, sediments, or archaeological materials. This record provides information on the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plates. According to continental drift theory, Indian landmass was part of Gondwana land, which included South America, Antarctica, Australia, Africa, and India. About 200 million years ago, this large landmass broke and Indian landmass moved northwards. Vindhya and Western Ghat mountains emerged during this period. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा पहला, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। कहाँ की तरफ को मूव्ड हुआ है, नॉर्थवार्ड मूव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड। कह रहा है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ओरिजिनली कौन से ह्यूज मास का पार्ट था। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये पार्ट था गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास दैट इज गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली part of a huge landmass called Gondwana
subcontinent. Gondwana was an ancient supercontinent that broke up about 200 million years ago. The continent eventually split into landmasses that we recognize today as Africa, South America, Australia, Antarctica, the Indian subcontinent, and the Arabian Peninsula. India, now question number 3. India is divided into how many natural territories? अभी हमने पढ़ा कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 natural territories. India is divided into 4 main natural regions. These are number 1 northern mountainous region, number 2 large plains, number 3 peninsular plateau, number 4 coast and islands. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे? ये तो हमने पढ़े 4 नेचुरल रीजन. 4 नेचुरल रीजन में हमने क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ा था, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ा था, फिर पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ा था, और इसके बाद कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को पढ़ा था. इसके बाद जब हम बात करते हैं क्या है, जो सब फिज़िकल रीजन्स हैं इंडिया के, तो जो इंडिया के जो सब फिज़िकल रीजन्स हैं इनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से सब फिज़िकल रीजन्स हैं इंडिया के? नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 सिंधु गंगा प्लेन्स, नंबर 3 थार डेजर्ट, नंबर 4 सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, नंबर 5 है कोस्टल प्लेन्स, नंबर 6 है सी एंड आइलैंड्स. इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल फाउंड? इसको हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के कौन से पार्ट में आर्टिशियंस वेल पाए जाते हैं, यानी जिनको पाताल तोड़ कुएँ कहते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? तराई में, जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं आर्टिशियन वेल्स. ठीक है, एन आर्टिशियन वेल इज simply a well that does not require a pump to bring water to the surface. This occurs when there is enough pressure in the aquifer. ठीक है, the pressure forces the water to the surface without any sort of assistance. In Uttarakhand, artesian wells are mostly found in तराई region. उत्तराखंड में जो आर्टिशियन वेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली तराई रीजन में पाए जाते हैं. और देखिए आर्टिशियन वेल के बारे में क्या बताया गया कि एन आर्टिशियन वेल इज सिंपली ए वेल that does not require a pump to bring water to the surface. This occurs when there is enough pressure in the aquifer. The pressure forces the water to the surface without any sort of assistance. In Uttarakhand, artesian wells are mostly found in the Tarai region. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया? ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में हमारे क्या होते, हिमालय रेंजेस नहीं होते, जो कि हमारे नॉर्थ में जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं सिक्योरिटी पर्पजेस से, और भी बहुत सारे जो क्या हैं, जो हमारा मानसूनल इफ़ेक्ट है उसको प्रभावित करता है, जो हमारा ठीक है सीजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो यही पूछना चाह रहा है कि अगर जहाँ पे आज हिमालय रेंजेस हैं, जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, अगर वो नहीं होती तो क्या उसका प्रभाव होता. ठीक है, व्हाट इज़ कह रहे हैं कि इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया. तो इंडिया पर उनका जो सबसे किस तरह का उनका प्रभाव होता. नंबर फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया. क्या ऐसा होता कि जितनी भी जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जो कोल्ड वेव्स हैं, उनका प्रभाव इंडिया पे पड़ता? हाँ बिल्कुल ऐसा होता, ये बात बिल्कुल सही है. उसके बाद सेकंड है, इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स. ठीक है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसको क्या मिलती है? बहुत सारी इसकी वजह से सॉइल मिलती है, जो कि क्या होती है? एलुवियल सॉइल्स होती है. वास्तव में क्या है, ये काफ़ी बढ़िया होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है. ठीक है, इसकी फर्टिलिटी बहुत बढ़िया होती है, फर्टाइल होती है सॉइल. तो अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती तो ऐसी सॉइल हमें नहीं मिल पाती. ठीक है, ये क्या है, सेकंड क्या बोला है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल. यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में तब क्या होता है, ऐसी जो एलुवियल सॉइल है जो बहुतायत पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती. तो ये इसका फ़ायदा है कि ये पाई जाती है. ठीक है, हाँ ऐसा इसके कारण है. ठीक है, नेक्स्ट है, the pattern of monsoon would be different from what is it at present. जो मानसून का आज पैटर्न हम देखते हैं वो जैसा आज है
उससे क्या होता, कुछ डिफरेंट होता अगर हिमालय रेंजेस नहीं होते। तो ये क्या है, जो हमारे उत्तर में, जो हमारे क्या है नॉर्थ में इंडिया के जो हिमालय रेंजेस हैं उनके प्रभाव को, उनके इम्पैक्ट को बताता है कि उनके होने से हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वो नहीं होते तो हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो इसमें तीनों ही चीज़ें, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताए गए हैं कि तीनों ही क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा है अगर नहीं होते, ठीक है, तो ऐसा प्रभाव पड़ता। कहा गया है कि इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता। ठीक है, व्हाट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, किस तरीके के प्रभाव होते हमारे इंडिया में, जोग्राफिकल इम्पैक्ट किस प्रकार का होता। तो ये क्या है, तीनों ही इसमें सही हैं। पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। अगर हिमालय नहीं होते तो क्या होती, जो हमारा पूरा भारत है वो क्या करता, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं हैं उनको एक्सपीरियंस करता। ठीक है, यानी यहाँ पे ठंडी हवाओं का प्रवाह होता। सेकंड बताया कि इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। आज जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो इतना फर्टाइल सॉइल है, वो नहीं होती, वो उससे रहित होता। ये कहने का मतलब है अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ एट प्रेजेंट। जो पैटर्न है मानसून का, जो आज है उससे क्या होता, डिफरेंट होता, जो आज है इससे अलग होता। तो ये तीनों ही प्रभाव हैं इसके। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस देन मोस्ट जोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। Indo-Gangetic plain would also be devoid of such extensive alluvial soil, and the pattern of monsoon would be different from what it is at present. Thus, all the above statements are correct. क्या है, सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। क्या ऐसा था, हमने क्या पढ़ा था, मेघालयन प्लेटू किसका एक्सटेंडेड पार्ट है। हमने पढ़ा था कि जो मेघालयन प्लेटू है वो पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू को ही क्या कहा जाता है, डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, ये एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए, क्या है, सिंक्लिनोरियम। ठीक है, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लिनोरियम, यानी सेकेंड स्टेटमेंट को कहा है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन ए फोर डीप। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है, द हिमालयाज ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ए ट्रायंगुलर कन्वर्जन ऑफ इंडियन प्लेट, द यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज़ प्लेट। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके ये जो पहले हमने तीनों स्टेटमेंट पढ़े वो बिल्कुल सही हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हुए चलते हैं कि मेघालय प्लेटू is an extension of the peninsular plateau. It is believed that due to the force exerted by the northeastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hill and the Meghalaya Plateau. Later, this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stand detached from the main peninsular block. Thus, statement 1 is correct. ये पहले स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। क्या स्ट्रक्चरली, ये मतलब संरचनात्मक रूप से जो मेघालय प्लेटू है वो क्या डेक्कन प्लेटू का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी का बड़ा हुआ रूप है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरली मतलब जब उसका जो उसकी संरचना हुई है, उसके निर्माण की बात हुई है। ठीक है, तो क्या है कि मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यू टू द फोर्स exerted by the northeastward movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. Later, this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today,
द मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेटू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए सिनक्लिनोरियम। सेकंड स्टेटमेंट ये था, ये भी बिल्कुल सही है। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन ए सिनक्लिनोरियम। The Indo-Gangetic Basin is an active foreland basin having east-west elongated shape. The basin formed in response to the uplift of Himalaya after the collision of India and China plates Deve and Bird 1970। ऐसा कहा गया है, ठीक है, इनके द्वारा कि द बेसिन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय आफ्टर द कॉलिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना प्लेट्स डेवी एंड बर्ड्स इन 1970। स्वेस, जो स्वेस हैं, स्वेस वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट दैट द इंडो गैंगेटिक डिप्रेशन इज ए फोर डीप एंड was formed in front of the high crust waves of the Himalayas as their southward migration was resisted by the rigid landmass of the peninsula. Thus statement 3 is also correct. Statement third क्या था, the Gangetic plain was formed in a four deep. The Gangetic plain was formed in a four deep, जो कि statement बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बताया इन्होंने कि जो स्वेस हैं, स्वेस क्या है, स्वेस वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट दैट इंडो गैंगेटिक डिप्रेशन इज ए फोर डीप एंड वॉज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द हाई crust waves of the Himalayas as their southward migration was resisted by the rigid landmass of the peninsula. Thus statement 3 is also correct. उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो देखते हैं कि उसका क्लियर क्या है, ठीक है, कि राइट क्या होगा उसमें। द हिमालयन माउंटेन रेंज एंड तिब्बतन प्लेटू हैव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। वहाँ पे क्या लिखा था, इसके साथ साथ चाइनीज़ प्लेट भी लिखा था, जो कि गलत है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, The Himalayan mountain range and Tibetan plate have formed as a result of the collision between the Indian plate and Eurasian plate. Chinese plate is not mentioned in the theory of plate tectonic. Thus statement 4 is wrong. तो ये सारे स्टेटमेंट हमने किसके बारे में पढ़े, ये सारे स्टेटमेंट हमने पढ़े फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया के रिगार्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन, उनकी बनावट या उनका जो निर्माण है वह किस तरीके से होता है, इस बारे में ये चारों स्टेटमेंट पढ़े हमने, जिसमें से चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था, क्योंकि इसमें चाइनीज़ प्लेट को मेंशन किया गया था, जबकि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है उसमें जब हम हिमालयन माउंटेन रेंज और टिबेटन प्लेटों के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कॉलिजन की बात आती है उसमें सिर्फ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर region is India's most ancient part. Geologically, Peninsula region is India's most ancient part. जो ना डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, जो पेनिनसुलर रीजन है, क्या ये पार्ट इंडिया का सबसे मोस्ट एंशियंट पार्ट है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। बी है Himalaya mountains demonstrate the most newly developed folded mountains in the world. जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो सबसे न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं क्या वर्ल्ड में, क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हिमालय माउंटेन्स हैं उनको क्या माना जाता है कि ये मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में। जो हिमालय माउंटेन्स हैं इनको क्या माना जाता है, न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स माना जाता है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय सबमर्ज्ड एंड
इमरजेंस, सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ द लैंड से बनता है। ठीक है, जो सी है इसमें ऑप्शन सी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आंसर इसमें होगा द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है उसका फॉर्मेशन होता है किससे होता है? सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से। सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड की प्रोसेस यहाँ पर होती है। ठीक है, और इसने क्या लिखा है? डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स लिखा है, जो कि गलत है। जबकि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ द लैंड से होता है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमें पता चल गया कि ये तो रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट ठीक था, सेकंड भी ठीक था, थर्ड गलत है। फोर्थ क्या है? गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में अगर कोल की बात करते हैं, कोयले के रिजर्व्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कोयले के रिजर्व्स हैं इंडिया में वो कहाँ पाए जाते हैं? गोंडवाना रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए चलते हैं कि द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, जो कि सी में लिखा था, स्टेटमेंट सी में, ऑप्शन सी में, जो कि गलत था। इनफैक्ट इट इज़ फॉर्म्ड बाय, जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है वो किसके कारण बनी है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। हिमालय इज़ द न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज़ द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? सही बात है। दस स्टेटमेंट सी इज़ इनकरेक्ट। सिर्फ क्या है? जो स्टेटमेंट सी था वो इनकरेक्ट था, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत थे। बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे, सिर्फ ऑप्शन सी रॉन्ग था। ठीक है, जिसमें कि हमने उसको करेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन्स इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रीजन कौन सा जोग्राफिकल रीजन है कंट्री का? वो है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। अभी हमने पढ़ा कि जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है ये इंडिया के जोग्राफिकल रीजन्स का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन कौन सा है? सिंधु एरिया। जो सिंधु का एरिया है वो कौन सा रीजन है? वो डेजर्ट रीजन है। उसमें पूछा इसमें से क्या सिंधु एरिया है, गंगेटिक एरिया है, आसाम एरिया है, सेंट्रल इंडिया एरिया है। गंगेटिक एरिया बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं है, सेंट्रल इंडिया का एरिया भी नहीं है, आसाम का एरिया भी नहीं है, बस सिंधु का जो एरिया है वो क्या है? डेजर्ट रीजन है। द सिंधु एरिया और द, जिसे हम इंडस वैली कहते हैं, और द इंडस वैली रीजन इज़ ए डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमें क्या करना है? मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो हमें इसमें देखना है, तो सबसे पहले है द ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स का ओरिजिन किससे होता है? क्रिटेशियस इयोशीन से होता है। क्रिटेशियस इयोशीन से। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट, ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट किससे होता है? लेट सेनोजोइक पीरियड में होता है। ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन कब होता है? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में होता है। नेक्स्ट है नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स कब के हैं? प्लीस्टोसीन पीरियड के हैं। द करेक्टली मैच्ड ऑर्डर इज़, तो सबसे पहले हमने डेक्कन ट्रैप्स की बात की, तो द ओरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स कहाँ पर होगा? क्रिटेशियस इयोसीन पीरियड में होगा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स कब होता है? डेक्कन ट्रैप्स का ओरिजिन क्रिटेशियस इयोसीन में। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का ओरिजिन कब होता है? लेट सेनोजोइक पीरियड में। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन्स का ओरिजिन कब होता है? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। नेक्स्ट है नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स। नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स कब बनते हैं? प्लीस्टोसीन पीरियड में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राजस्थान डेजर्ट है या फिर जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं, ये किसका एक्सपेंशन है, किसका फैलाव है? ये है प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स। राजस्थान डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद एक
इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, the Thar Desert is the expanse of Pleistocene and recent deposits. The development of the Thar Desert started somewhere 70,000 years ago. Pleistocene, often referred to Ice Age, lasted from क्या है, काफ़ी 25,88,000 to 11,700 years ago, ठीक है। 2588,000 to 11,700 years ago, ठीक है। ये क्या कहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंस ऑफ Pleistocene and recent deposits. The development of the Thar Desert started somewhere 70,000 years ago. Pleistocene often referred to the Ice Age. प्लीस्टोसीन को किस नाम से भी जाना जाता है, आइस एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कब से चल रहा है प्लीस्टोसीन ऑफन रेफर टू आइस एज लास्टेड फ्रॉम 2588,000, ठीक है, यानी 25,88,000 ईयर्स टू 11,700 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अभी के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि कुट्टानाड और कुट्टानाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर। कुट्टानाड या फिर जो कुट्टानाडु है केरला का किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। ये फेमस है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो कुट्टानाड है या कुट्टानाडु है केरला का, ये क्या है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। कुट्टानाड ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानाड इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ केरला। कुट्टानाड को क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ केरला कहा जाता है। हेयर फार्मिंग इज़ 4 to 10 feet, practiced 2.5 to 4 meter below sea level. FAO, Food and Agriculture Organization, FAO has declared the Kuttanad farming system as a globally important agricultural heritage system. क्या था क्वेश्चन नंबर 12, कुट्टानाड और कुट्टानाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है कुट्टानाड या कुट्टानाडु, जो कि केरला में है। ये क्या है, इंडिया का द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। कुट्टानाड ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानाड इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ केरला। हेयर फार्मिंग इज़ 4 to 10 feet practiced, ठीक है, 2.5 to 4 meter below sea level. Food and Agricultural Organization FAO has declared the Kuttanad farming system as a globally important agriculture heritage system. तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।